Bismillahirrahmanirrahim. I am from Progressive Model School, Peshawar Road, Rawalpindi. Subject is Pakistan Studies for class 8th, chapter number 2, Making of Pakistan. Please subscribe our Progressive Model School YouTube channel so you may get latest videos and lectures and activities related to your course. After going through this chapter, students will able to trace the background of the Pakistan resolution with reference to Pakistan movement, discuss the proposals of Cripps Mission 1942 and reaction of political parties, describe the Jinnah Gandhi talks and causes of its failure, trace the points of Wavell Plan in Shimla Conference, describe the impact of the 1945-46 general elections on the creation of Pakistan, discuss the Muslim League Legislators Convention 1946, describe the purposes and proposals of Cabinet Mission Plan 1946, discuss the role of interim Government 1946-47 analysis, the 3rd June 1947 plan defined the purposes of British colonialism and its strategy, described the role of the Quaid-e-Azam in the making of Pakistan. इस चैप्टर को पढ़ने के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि तरीके पाकिस्तान के हवाले से क़यादत पाकिस्तान का पस मंज़र बयान कर सकें, क्रिप्स मिशन 1942 की तजावीज़ और सियासी जमातों के रद्दअमल से आगाही हासिल कर सकेंगे, जिन्ना गांधी मुज़ाकरात 1944 की नाकामी की वजूहात बयान कर सकेंगे और शिमला कॉन्फ्रेंस में वेवल प्लान के नकात के बारे में जान सकेंगे। आम इंतखाबात 1945-46 के क़याम पाकिस्तान पर असरात का जायजा ले सकेंगे, मुस्लिम लीग के अरकान असम्बली के कन्वेंशन 1946 की वजाहत करेंगे, काबीना मिशन प्लान 1946 के मकासद और तजावीज़ से वाकफियत हासिल कर सकेंगे, अबूरी हुकूमत 1946-47 के बारे में जान सकेंगे, 3 जून 1947 के मंजूबे पर रोशनी डाल सकेंगे, हिंदुस्तान में अंग्रेज नौआबादियाती निज़ाम के मकासद और अंदाज़े हुक्मरानी को समझ सकेंगे और क़याम पाकिस्तान के लिए क़ायद-ए-आज़म का किरदार बयान कर सकेंगे। चैप्टर नंबर 2, मेकिंग ऑफ पाकिस्तान यानी पाकिस्तान का क़याम। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, विच रेजोल्यूशन वाज प्रेजेंटेड बाय चीफ मिनिस्टर बंगाल हुसैन शहीद सोहरवर्दी इन द कन्वेंशन ऑफ असेंबली मेंबर्स इन 1946? वज़ीर आला बंगाल मिस्टर हुसैन शहीद सोहरवर्दी ने मुस्लिम लीग के अरकान असम्बली के कन्वेंशन 1946 में कौन सी करारदाद पेश की? द आंसर इज द रेजोल्यूशन डिक्लेयर्ड दैट द जोन्स comprising Bengal and Assam in the northeast and the Punjab northwest frontier province, Khyber Pakhtunkhwa, Sindh and Balochistan in the northwest of India, namely Pakistan zones, where the Muslims are in a dominant majority, be constituted in a civilian independent state, and that an unequivocal undertaking be given to implement the establishment of Pakistan without delay. इस करारदाद में कहा गया था कि शमाल मशरकी खित्ते में बंगाल और असम, शमाल मगरबी खित्ते में पंजाब, सूबा सरहद खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलोचिस्तान को मिलाकर एक आज़ाद और खुद मुख्तियार ममलकत की तश्कील की जाए। इस बात की हतमी यकीन दहानी कराई जाए कि पाकिस्तान बिला तखीर कायम कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, नरेट 3 प्रपोजल्स ऑफ क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन की 3 तजावीज़ बयान करें। Proposal of Cripps Mission. Cripps Mission offered the following proposals. After the war, the subcontinent will be under the crown, but the British government would avoid interfering in internal as well as external affairs. Defense, foreign affairs, communication, etc. will be handed over to the Indians. The members of the provisional legislative assemblies will elect a central assembly for framing constitution. After the constitution is made, it will be sent to all the provinces for confirmation. The provinces which would not approve the constitution would have the authority to establish their independent status. Appropriate steps will be taken for the security of minorities. ये थे इसके पॉइंट प्रपोजल्स ऑफ क्रिप्स मिशन के। 4 पॉइंट थे इसके। क्रिप्स मिशन ने झैल तजवीज़ पेश की। नंबर 1, जंग के बाद बरसगीर ताज बरतानिया के मातहत होगा, लेकिन अंदरूनी और बैरूनी मामलात में बरतानी हुकूमत किसी तरह की दखल अंदाजी से ग्रेज करेगी। नंबर 2, दिफा, अमूर खारजा, मवासलात वगैरह समेत तमाम शोबे हिंदुस्तानियों के सुपुर्द कर दिए जाएंगे। नंबर 3,
आइन साजी के लिए एक मरकजी असम्बली मुंतखब की जाएगी जिसके चुनाव का इख्तियार सूबाई कानून साज असम्बलियों के अरकान को हासिल होगा। आइन मुकम्मल हो गया तो उसे हर सूबे की तौसीक के लिए भेजा जाएगा। जो सूबे आइन को पसंद नहीं करेंगे वो बाइख्तियार होंगे कि मरकज से अलहदा होकर अपनी आज़ाद हैसियत कायम कर लें। नंबर 4 है अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनासिब इक़दाम उठाए जाएंगे। Question number 3. While presiding over the All India Muslim League session at Lahore in 1940, Quaid-e-Azam identified the directions for the struggle of the Muslims. Write any 2 points of this address. कि कायदे आज़म ने मुस्लिम लीग के 1940 के लाहौर इजलास की सदारत करते हुए अपने खुतबे में मुसलमानों की जिदोजहद के लिए सिमत का तयन कर दिया। इस खुतबे के कोई से 2 नुकात बयान कीजिए। Answer is, while presiding over the All India Muslim League session at Lahore in 1940, Quaid-e-Azam identified the direction for the struggle of the Muslims. The main points of his address are as under. Point number 1, the Muslims are a separate nation because their customs, traditions, civilization, culture, and above all religion is different from Hindus. In spite of the fact that they had been living together for centuries, both have their distinctive identification. If the subcontinent gets freedom in the form of united India, the rights of the Muslims will not be protected. Second point है, the demand of the Muslim for a separate country is not unhistorical. Ireland got freedom from England. Spain and Portugal became separate states. Czechoslovakia got a separate identification as a result of the partition. कायदे-ए-आज़म का खुतबा सदारत। कायदे-ए-आज़म ने 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर इजलास की सदारत करते हुए अपने खुतबे में मुसलमानों की जद्दोजहद के लिए सिमत का तयन कर दिया। इनके खुतबे के अहम निकात दर्ज झैल थे। नंबर 1, मुसलमान एक अलग कौम है क्योंकि उनके रस्म रवाज, रवायात, तहजीब सकाफत और सबसे बढ़कर उनका मजहब जुदा है। सदियों से साथ साथ रहने के बावजूद हिंदू और मुसलमान अपनी अपनी जुदागाना पहचान रखते हैं। अगर बरसगीर मुतहदा सूरत में आज़ाद होता है तो मुसलमानों के हकूक़ की हिफाजत नहीं हो सकेगी। नंबर 2 है, मुसलमान अलहदा ममलकत का मुतालबा कर रहे हैं तो यह गैर तारीखी नहीं समझा जा सकता। बरतानिया से आयरलैंड जुदा हुआ, स्पेन और पुर्तगाल अलग-अलग ममलकतें बनी और चेकोस्लोवाकिया का वजूद भी तकसीम का नतीजा बना। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द रिप्लाई ऑफ कायदे-ए-आज़म इन जिन्ना गांधी टॉक्स 1944? जिन्ना गांधी मुज़ाकरात 1944 में कायदे-ए-आज़म का जवाब तहरीर करें। आंसर इज, रिप्लाई ऑफ कायदे-ए-आज़म. Quaid-e-Azam adjudged that the style adopted by Gandhi is nothing but cheating and hypocrisy and cunningness. He emphasized that the British must settle the issue of Pakistan before the freedom of India because Congress and Hindus could not be relied upon. कायदे-आज़म का जवाब। कायदे-आज़म ने गांधी के इस अंदाज को एक धोखा और मकारी करार दिया और इस बात पर जोर दिया कि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान की आज़ादी से कबल पाकिस्तान का मसला अंग्रेज़ों को हल करना चाहिए क्योंकि कांग्रेस और गांधी पर किसी सूरत भी एतमाद नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 5, many important personalities presented the opinion partition India. Write the names of any 5 true personalities. कि कई अहम शख्सियात ने बरसगीर को तकसीम करने की राय पेश की, उनमें से कोई सी 5 शख्सियात के नाम तहरीर करें। द आंसर इज, मैनी सिग्निफिकेंट पर्सनैलिटीज लाइक सैयद जमालुद्दीन अफगानी, अब्दुल हलीम शरर, अब्दुल जब्बार खैरी, अब्दुल सत्तार खैरी यानी खैरी ब्रदर्स, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा इकबाल एंड चौधरी रहमत अली प्रपोज फॉर पार्टीशन द सब कॉन्टिनेंट। इन बहुत सी अहम शख्सियात में जिन्होंने बरसगीर को तकसीम करने की राय पेश की, उनमें से अहम शख्सियात के नाम जमालुद्दीन अफगानी, अब्दुल हलीम शरर, अब्दुल जब्बार खैरी, अब्दुल सत्तार खैरी, खैरी ब्रदर्स, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा इकबाल और चौधरी रहमत अली शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड द प्रोविजनल ग्रुप्स फॉर्म्ड इन द कैबिनेट मिशन प्लान? काबीना मिशन प्लान में सूबाई ग्रुप की तश्कील कैसे हुई? आंसर इज, द प्रोविंसेस ऑफ इंडिया वर टू फॉर्म 3 ग्रुप्स। ग्रुप ए, हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस ऑफ मद्रास, बॉम्बे, मुंबई, यूपी,
CP, Bihar and Orissa. Group B, Muslim majority provinces like Punjab, Northwest Frontier Province, Khyber Pakhtunkhwa, Balochistan and Sindh. Group C, Bengal and Assam. सूबाई ग्रुपों की तश्कील, सूबों को दरअसल 3 ग्रुपों में तकसीम किया जाएगा। ग्रुप ए, बम्बई, मुंबई, मद्रास, यूपी, बिहार, उड़ीसा, सीपी। ग्रुप बी, पंजाब सरहद, सूबा खैबर पख्तूनख्वा और सिंध। ग्रुप सी, बंगाल और असम। राइट द 3 पॉइंट्स ऑफ द वेवल प्लान। क्वेश्चन नंबर 7। वेवल प्लान के कोई से 3 नकात तहरीर करें। आंसर: Following points were included in the Wavell Plan. The constitution of the future will be made with the will of all the political forces. Number 2, the Viceroy's Executive Council will be reconstituted. Representatives of all the political forces will be selected for it. 6 Hindus and 5 Muslim representatives will be included in the Executive Council. Number 3, Governor General will preside over the Executive Council. All the members of the Executive Council will belong to the subcontinent except the Commander-in-Chief. Number 4, after reconstituting the Executive Council in the center, Executive Councils will be reconstituted in all the provinces. वेवल प्लान में दर्जैल निकात शामिल थे। नंबर 1, मुस्तकबिल का दस्तूर बरसगीर की तमाम सियासी ताकतों की मर्जी से बनाया जाएगा। नंबर 2, गवर्नर जनरल की इंतजामी कौंसिल बनाई जाएगी और कौंसिल में बरसगीर की सियासी कुव्वतों के नुमाइंदे शरीक किए जाएंगे। इनमें 6 हिंदू और 5 मुसलमान होंगे। नंबर 3, गवर्नर जनरल अपनी इंतजामी कौंसिल की सदारत करेगा और कमांडर इन चीफ के अलावा दूसरे तमाम अरकान कौंसिल का ताल्लुक बरसगीर से होगा। अरकान का चुनाव गवर्नर जनरल खुद करेगा। नंबर 4, मरकज में इंतजामी कौंसिल को तश्कील देने के बाद तमाम सूबों में भी इंतजामी कौंसिलें मुनज़्ज़म की जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब द मैनिफेस्टो ऑफ द मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस इन द जनरल इलेक्शन 1945-46। आम इंतखाबात 1945-46 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का मंशूर बयान कीजिए। Answer is, Congress claimed itself to be the representative of all the communities and sections of the people living in the subcontinent and that the Muslims also agree to the viewpoint of the Congress. Qaid-e-Azam affirmed that the general elections will prove plebiscite regarding Pakistan. If the Muslims stood with the Muslim League, it meant they wanted Pakistan. Otherwise, the demand for a separate homeland should be considered as rejected. कांग्रेस और मुस्लिम लीग का मंशूर। कांग्रेस का दावा था कि वो बरसगीर में रहने वाले तमाम गुरोहों और फिरकों की नुमाइंदा जमात है और मुसलमान भी कांग्रेस के नुक्ता नज़र से हम आंग हैं। कायद-ए-आज़म का दावा था कि आम इंतखाबात पाकिस्तान के बारे में इस्तिस्वाब राय होंगे। अगर मुसलमान मुस्लिम लीग का साथ दें तो पाकिस्तान बनने दिया जाए, वरना इस मुतालबा को आज खुद मुस्तरद समझा जाए। क्वेश्चन नंबर 9, राइट द टेक्स्ट ऑफ द पाकिस्तान रेजोल्यूशन। करारदाद पाकिस्तान का मतन बयान कीजिए। आंसर इज, द रेजोल्यूशन डिक्लेयर्ड no constitutional plan would be workable or acceptable to the Muslims unless geographical contiguous units are demarcated into regions which should be so constituted with such territorial readjustments as may be necessary, that the areas in which the Muslims are numerically in majority, as in the northwestern and eastern zones of India, should be grouped to constitute independent states in which the constituent units shall be autonomous and sovereign. It further reads that adequate, effective and mandatory safeguards shall be specifically provided in the Constitution for minorities in the units and in the regions for the protection of their religious, cultural, economic, political and administrative and other rights of the minorities. With their consultation, arrangements thus should be made for the security of Muslims where they were in a minority. आईनी मनसूबा इस मुल्क में काबिल अमल और मुसलमानों के लिए काबिल कबूल नहीं होगा तावक्ती के वो मद्देनज़र बुनियादी उसूलों पर वज़ा न किया गया हो।
यानी जोग्राफियाई तौर पर मुत्तसिल वहदतों की हदबंदी ऐसे खित्तों में की जाए मुनासिब इलाकाई रद्दोबदल के साथ कि जिन इलाकों में मुसलमानों की अक्सरियत है, मसलन हिंदुस्तान के शमाल मगरबी और मशरकी हिस्से, उनकी तश्कील ऐसी आज़ाद रियासतों की सूरत में की जाए जिनकी मशमूला वहदतें खुद मुख्तार और मुक्तदर हों। नीज़ इन वहदतों और खित्तों में अकलियतों के और हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों जहाँ मुसलमान अकलियत में हैं उनके हकूक़ मफादात का मुनासिब तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। ये था क़रारदाद पाकिस्तान का मतन। क्वेश्चन नंबर 10, राइट द नेम ऑफ द 5 मिनिस्टर्स ऑफ मुस्लिम लीग इंक्लूडेड इन द इंट्राइम गवर्नमेंट। अबूरी हुकूमत में शामिल 5 मुस्लिम लीगी वज़रा के नाम लिखे। द आंसर इज लियाकत अली खान, अब्दुल रब निश्तर, इब्राहिम इस्माइल चंद्रीगढ़, राजा गजनफर अली खान और जोगिंदर नाथ मैंडल। Question number 11. Write the names of the members of Cabinet Mission Plan 1946. Answer is Kabina Mission Plan 1946 के मेंबरान के नाम तहरीर करें। The commissions consisted of 3 ministers, Sir Stafford Cripps, Mr. A.V. Alexander, Lord Patrick Lawrence. Since all the members belonged to British cabinet, it was called Cabinet Mission. इस मिशन में 3 वज़रा शामिल थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, E.V. अलेक्जेंडर और सर पैट्रिक लॉरेंस। चूंकि तमाम अरकान का ताल्लुक बरतानवी काबीना से था, लिहाजा इसे काबीना मिशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, नरेट द स्टैंड पॉइंट ऑफ कायद-ए-आज़म ऑन रोल्ट एक्ट 1919। आंसर इज इन 1919 सर सिडनी रोल्ट got an act passed. It was named as the Rolt Act. It was a black law. The administration was given unlimited powers and the civil rights were trodden upon. Qaid-e-Azam raised his voice against it. He wrote to the Viceroy Lord Chelmsford, in my opinion, the government that passes or sanctions such a law in times of peace forfeits its claim to be called a civilized government. 1919 में सर सिडनी रोल्ट ने एक एक्ट पास करवाया जिसे रोल्ट एक्ट का नाम दिया गया। ये एक काला कानून था। इसमें इंतजामिया को लामहदूद इख्तियारात दिए गए और शहरियों के हकूक पामाल किए गए। कायद-ए-आज़म ने इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की और हुकूमत बरतानिया से कहा कि जो कौम अमन के ज़माने में काले कानून बनाती है वो महज़ब कौम नहीं हो सकती। 1919 के मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड इस्लाहात के लिए कायद-ए-आज़म की कोशिश बड़ी अहमियत की हामिल है। Question number 13. How did the India occupy Kashmir? भारत ने कश्मीर पर कब्जा कैसे किया? Answer is there were 635 princely states in the subcontinent. A large number of these states joined one either of the two countries. However, no decision could be made of the states of Jammu and Kashmir, Hyderabad, Deccan, Junagadh, Mangrol, and Manavadar. Afterwards, India occupied these states. The Muslims were in minority in these states except Jammu and Kashmir. Therefore, Pakistan arose the question of rights of the people with reference to the Muslim majority state Jammu and Kashmir. Pakistan is of the view that the right of self-determination of every state must be honored and the future of the state must be decided in accordance with the wishes of the people. बरसगीर की रियासतों के हुक्मरान नवाब और राजा थे। इन रियासतों में से बहुत बड़ी तादाद आज खुद दोनों ममालिक में से किसी एक मुल्क से इल्हाक कर लिया। रियासत जम्मू कश्मीर, रियासत हैदराबाद दक्कन, रियासत जूनागढ़, मंगरोल और रियासत मनावदर का फैसला न हो सका। इंडिया ने बाद अज़ां फौजकशी करके इन रियासतों पर कब्जा कर लिया। रियासत जम्मू कश्मीर के अलावा बाकी रियासतों में मुसलमान अकलियत में थे, इसलिए पाकिस्तान ने सिर्फ मुस्लिम अक्सरियती रियासत जम्मू कश्मीर के हवाले से अवामी हकूक का सवाल उठाया। पाकिस्तान का मौक़िफ़ रहा है कि हर रियासत के अवाम के हक़ खुद इरादियत का एहतराम होना चाहिए और उनकी मर्जी से रियासत के मुस्तकबिल के बारे में फैसला किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14. Describe the holding of all parties conference under 3 जून 1947 प्लान। 3 जून 1947 के मंसूबे के तहत कुल जमाती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद बयान करें। Answer is all parties conference. When Mountbatten came back from London, he convened and all parties conference. कायद-ए-आज़म लियाकत अली खान, सरदार अब्दुल रब निश्तर, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, आचार्य कृपलानी,
and Baldev Singh participated in it. Viceroy of India explained the various aspects of the partition plan. Afterwards, he held separate meetings with leaders of each party. On 3rd June 1947, the second session of the conference was conducted. All the leaders approved the plan. Despite the promise made with the Muslims had been breached and injustice was done to gain the goodwill of the leaders of the Congress. Quaid-e-Azam accepted the plan unwillingly. The speeches of the representatives of both the major parties were broadcasted on radio. Quaid-e-Azam ended his speech with Pakistan Zindabad. कुल जमाती कॉन्फ्रेंस का इनकार। लॉर्ड माउंटबेटन ने लंदन से वापसी पर एक कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसमें कायदे आजम लियाकत अली खान, सरदार अब्दुल रब नश्तर, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, आचार्य कृपलानी और बलदेव सिंह ने शिरकत की। वायसराय हिंद ने कांग्रेस में तकसीम के मंसूबे के मुख्तलिफ पहलुओं की वजाहत की। बादशाह हर जमात के रहनुमाओं से अलग-अलग मुलाकातें की। 3 जून 1947 को कॉन्फ्रेंस का दूसरा इजलास मुनक्कद हुआ और तमाम रहनुमाओं ने मंसूबे की मंजूरी दे दी। अगरचे मुसलमानों से बदअहदी की गई थी और कांग्रेसी लीडरों की खुशनुदी के लिए मंसूबे में नाइंसाफियों से काम लिया गया था, लेकिन कायदे आजम ने इसके बावजूद बादले नाख्वास्ता मंसूबे को कबूल कर लिया। दोनों बड़ी जमातों के नुमाइंदों ने रेडियो पर तकारीर की। कायदे आजम ने अपनी तकरीर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे पर ख़त्म की। Question number 15. How did the Quaid-e-Azam get the title of Ambassador of Peace? कायदे आजम ने सफीर अमन का खिताब कैसे पाया? Answer is under Lucknow Pact, Qaid Azam united both of the nations, the Hindus and the Muslims. In 1916, he got the right of separate electorates for the Muslims, acknowledged and got the title of Ambassadors of Peace. 1916 में कायदे आजम ने मिसाक लखनऊ के तहत दोनों कौमों हिंदुओं और मुसलमानों को आपस में मुत्तहिद कर दिया। मुसलमानों के लिए हिंदुओं से जदागाना इंतखाब का हक मनवा लिया और सफीर अमन का खिताब पाया। These were the short question answer of this chapter, Making of Pakistan. In next video, we will discuss long question answer of this chapter, Making of Pakistan. Stay home, stay safe, save Pakistan. Allah Hafiz.